Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain the way how we can increase water use efficiency of crops. So there is a lecture in which I explain what is water use efficiency, and it is the relation of yield with evapotranspiration. तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा व्हाट इज वाटर यूज efficiency. So there are different type of water use efficiency, but with respect to crop, we calculate water use efficiency as what is yield and what is ET. So the relation between both is called water use efficiency for crops. तो ये water use efficiency अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकती है, but for crops it is the yield with ET. How much water is lost to produce 1 kg yield? That is water use efficiency, and unit is kilogram per hectare millimeter. So if we see this relationship, then we see that water use efficiency is directly related with the yield, and this water use efficiency is inversely related with evapotranspiration. So it means it is directly related. So there are two relations. It means if we increase the yield, definitely water use efficiency will increase because there is direct relationship. अगर कोई चीज़ डायरेक्टली लिंक्ड है तो उस चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ जो लिंक्ड है वो बढ़ेगी. तो देखिए ये न्यूमरेटर डायरेक्ट होता है, डिनोमिनेटर इज इनवर्सली रिलेटेड. Similarly here it is inversely related. It means if ET is increased, then water use efficiency is decreased, and vice versa. If ET is reduced, then water use efficiency is increased. So it means if ET is reduced, then water use efficiency will increase. It means to increase the water use efficiency, we have to increase crop yield, that is grain yield, economic yield, and our attempt should be to reduce ET. तो क्या वे हो सकते हैं जिससे हम yield बढ़ा सकते हैं, और क्या ऐसे वे हैं जिनसे हम ET को reduce कर सकते हैं. So as far as yield is concerned, ways to increase the yield, there are several agronomic ways by which we can increase the yield. अगर हम बात करें yield की तो बहुत सारी ways हैं, लेकिन यहाँ हमको ये समझना है we have to maximize the water use, that water which is present in soil. यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम सॉइल वाटर को बहुत कंजर्व कर दें या हम कुछ टेक्निक से सॉइल स्टोरेज बढ़ाएं. यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सॉइल में जो वाटर है, मान लीजिए सॉइल में ये वाटर है, जो स्टोर्ड वाटर है, उसको हम कैसे इसका मैक्सिमाइज यूज करें. ये स्टोर्ड वाटर है and plant is growing in this soil, and then transpiration is there and evaporation is there, and then some yield is obtained. So how we can make the maximum use of stored soil water? तो जिस तरह से हम जैसे जैसे soil water storage की ability to plant बढ़ाते हैं, water use efficiency increase करेगी. इसको with reason यहाँ पे हम देखेंगे. तो यहाँ हमारे पास दो अटेम्प्ट हैं, आइदर इंक्रीज यील्ड और रिड्यूस ईटी लॉस. तो पहले हम यील्ड को डिस्कस करेंगे. तो देखिए यील्ड को अगर हमें इंक्रीज करना है किसी भी एरिया में क्रॉप की, तो नंबर 1 इज फील्ड प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फील्ड प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड फील्ड इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू क्रॉप नीड. फाइन सीड बेड और कोर सीड बेड, अगर बहुत छोटा सीड है तो फाइन सीड बेड बनानी पड़ेगी. देन डीप प्लाइंग, अगर डीप रूटेड क्रॉप है, अगर शैलो रूटेड क्रॉप है तो शैलो टिलेज से भी काम हो जाएगा. देन प्रॉपर लेबलिंग, व्हेन देयर इज इरिगेशन, देन प्रॉपर मॉइस्चर स्टोरेज इज देयर, रन ऑफ इज लेस आफ्टर रेनफॉल. तो हमारा फील्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आप फील्ड प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंस को जानते होंगे कि जैसे कि हमको क्रॉप की सीड के अकॉर्डिंग करना है, लेबलिंग करनी है, उसकी डेप्थ भी प्रॉपर रखनी है. सेकेंड वन इज variety. It is very important characteristic or way, because variety should be adopted according to area.
हर एरिया के लिए अलग अलग वैरायटी होती है, उसको ही ग्रो करना चाहिए। मान लीजिए वीट है, वीट इज ग्रोन फ्रॉम हिमालय टू सी लेवल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा गेहूँ उगाया जा रहा है, पहाड़ पे भी गेहूँ उगा रहे हैं, नीचे केरल में भी है, तमिलनाडु में, हर जगह जो है गेहूँ उगा रहे हैं। लेकिन देखिए अब गेहूँ की वैरायटी सब अलग अलग है, गुजरात की गेहूँ की वैरायटी अलग है, पंजाब की अलग है, हिमाचल प्रदेश की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। तो वैरायटी शुड बी अडोप्टेड टू दैट रीजन। तो जो रिकमेंडेड वैरायटी है उसी को हमें ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसका एक मैं पूरा बता चुका हूँ कि एक जो वैरायटी की जो अकॉर्डेंस होती है एरिया में किस तरह से परफॉर्म करती है, कि टाइमली अगर हम नहीं करेंगे, उस एरिया में नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो वहाँ वो परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वैरायटी जो रिलीज़ की जाती है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रिलीज़ की जाती है। दैट्स वाई वी शुड ग्रो रिकमेंडेड वैरायटी। तो क्योंकि जो क्लाइमेट का इफेक्ट होता है दैट इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई ऑन वैराइटल परफॉर्मेंस। नंबर नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सोइंग। टाइम ऑफ सोइंग का एक मैंने आपको लेक्चर अपलोड कर रखा है कि कैसे टाइम ऑफ सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जनरल लेक्चर्स में दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं। टाइम ऑफ सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर ए गुड यील्ड a balance should be maintained between vegetative growth and reproductive growth, and after a period crop come under reproductive phase. If crop is sown early, टाइम से पहले बो दिया, तो there is huge biomass production, vegetative growth, but economic yield, grain yield is less, so that's why yield will be poor. If crop is sown late, then vegetative biomass production is very less and it come into reproductive phase early. तो जो reproductive phase में जो vegetative मैटर में जो वेजिटेटिव फेस में जो ड्राई मैटर बना है वो कम ट्रांसलोकेट होगा, तो भी यील्ड कम हो जाएगी। तो टाइम ऑफ सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स नंबर 1 फील्ड प्रिपरेशन, देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेराइटी, नंबर 3 प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। बिकॉज टू परफॉर्म ए क्रॉप न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड एंड 17 न्यूट्रिएंट्स आर essential, and these nutrients should be in adequate amount and balanced रेशियो। एडिक्वेट भी अमाउंट एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी की टॉक्सिसिटी हो जाए, किसी की डेफिशिएंसी हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए वेरी गुड यील्ड। और फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस, न्यूट्रेंट की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एंड स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए वेरी गुड क्रॉप परफॉर्मेंस। तो स्प्लिट एप्लीकेशन नाइट्रोजन करना है और पोटेशियम और फास्फोरस का बेस एप्लीकेशन करना है, और एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अप्लाइड थ्रू फोलियर एप्लीकेशन। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। इसके सॉइल फर्टिलिटी में बहुत लेक्चर्स हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ हमारा कंसर्न है कि हाउ टू इंक्रीज द यील्ड, तो यहाँ फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ वन इज वीड कंट्रोल। एक्चुअली वीड compete with crop for resources like moisture, like space, nutrients, लाइट, सभी के लिए कंपटीशन करते हैं। दैट्स वाई इन ए वीडी फील्ड क्रॉप यील्ड इज वेरी लो। तो अगर हम वीड कंट्रोल करेंगे टाइमली तो हमारे पास दो एडवांटेज हैं। नंबर 1 इज यील्ड इज इंक्रीज्ड, नंबर 2 मॉइस्चर इज कंजर्व, अदरवाइज लॉस्ट बाय वीड्स। तो यहाँ वीड कंट्रोल के दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं। नंबर 1 कॉम्पिटिशन इज रिड्यूस्ड, सो यील्ड इज इंक्रीज्ड, क्रॉप यील्ड इज इंक्रीज्ड। नंबर 2 इज जो वीड्स मॉइस्चर को यूज करते हैं वो अब वीड्स नहीं रहेंगे, तो मॉइस्चर क्या रहेगा, सॉइल में कंजर्व रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट डिसीज कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, टाइमली कंट्रोल, अदरवाइज यील्ड इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ डिसीज को कंट्रोल करके टाइमली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्रॉप को देखना पड़ेगा कि इंसेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई डिसीज नहीं आ रहा है, एंड टाइमली कंट्रोल। इफ देयर इज अ लेट कंट्रोल देन यील्ड इज रिड्यूस्ड सीवियरली। तो टाइमली कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड इंसेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द यील्ड। तो एक बहुत कॉमन बात है कि हम यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि बहुत हम बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ मैंने जो आपको बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड प्रिपरेशन, और जो हम सोइंग कर रहे हैं, वैरायटी हमारी कौन सी है, कितना हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, वीट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल हम कैसे कर रहे हैं। अनदर इज वाटर मैनेजमेंट। हियर वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड 2 parts, irrigation and drainage. When we talk about water management, then we जो हम बात करते हैं केवल इरीगेशन की करते हैं वाटर मैनेजमेंट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड 2 parts, irrigation as well as drainage. Both are important. Some crops are very sensitive to waterlogging, for example maize. So drainage is more important than irrigation in case of maize. तो यहाँ हमको इरीगेशन टाइमली देना है,
अगर रेनफेड क्रॉप है तो हमको मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी इन केस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। और इरीगेटेड कंडीशन है देन टाइमली इरीगेशन हमको करना पड़ेगा। इसी तरह से ड्रेनेज, इफ देयर इज एक्सेस रेनफॉल देन ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्रॉप में स्पॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ड्रेनेज को हम भूल जाते हैं, ड्रेनेज को भी कंसिडर करना चाहिए, और जनरली कंपटीशन एग्जामिनेशन में बच्चे इस बात को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि ड्रेनेज भी एक इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर मैनेजमेंट का। तो वाटर मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर है, देन वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी गुड, देन दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड पर्टिकुलरली इन प्लांट दिस वाटर इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्लांट्स के लिए, बिकॉज nutrients are first dissolved in water, then plants absorb this nutrient along with water. nutrient का कभी भी प्लांट एज सच अपटेक नहीं करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का जो भी एब्जॉर्प्शन प्लांट से होता है वो along with water होता है। तो मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। एज द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज देन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आल्सो डिक्रीजेज, ये बात को बहुत ध्यान रखना है। तो वाटर मैनेजमेंट जो रेनफेड कंडीशन में है मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस पे है, और इरीगेटेड कंडीशन में टाइमली इरीगेशन पे है। और ड्रेनेज तो बहुत दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेस रेनफॉल में जो प्रॉब्लम है दैट इज ड्रेनेज। तो हमको ड्रेनेज प्रॉपरली सेफ वेलोसिटी के साथ करना चाहिए ताकि, और टाइमली ड्रेनेज होना चाहिए। अगर बहुत टाइम तक फील्ड में पानी भरा रहा तो क्रॉप डैमेज हो जाती है, पर्टिकुलरली पल्स क्रॉप बहुत सेंसिटिव है, जैसे मैंने मेज बताया मेज बहुत सेंसिटिव है। तो ये हमारे वेज हैं यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ईटी, हाउ टू डिक्रीज ईटी, तो यहां देखिए जो ईटी का है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इज मस्ट, ट्रांसपिरेशन इज मस्ट, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर होना बहुत जरूरी है। देयर इज ए ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर विद द रूट देन कम इनटू शूट एंड देन इट इज evaporated into atmosphere, and this stream is known as transpiration stream. There is a transpiration pull, इस ट्रांसपिरेशन से जो पानी प्लांट्स नीचे से खींचते हैं उसके साथ न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और वो पानी फिर एटमॉस्फेयर में evaporate कर जाता है। So there is a transpiration stream and this is very important particularly for nutrient absorption point of view. So that's why transpiration is said to be necessary evil, कि जो evil तो है, बुराई तो है, लेकिन होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ट्रांसपिरेशन तो फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो ड्राई मैटर प्रोडक्शन, और ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज सीवियरली अफेक्टेड। तो यहाँ हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, फर्स्ट हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए, अब देखिए ईटी में दोनों है एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, तो हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, एवोपरेशन को रिड्यूस करने के लिए होने चाहिए। तो हाउ टू रिड्यूस एवोपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन अर्ली स्टेज क्रॉप कैनोपी इज वेरी लेस, जब हम क्रॉप की स्विंग करते हैं तो जब तक जनरेशन नहीं होता तब तक तो पूरा फील्ड ओपन है, एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे कैनोपी डेवलप होती है क्रॉप सॉइल कवर होती जाती है और एवोपरेशन कम होता जाता है। बट दिस एवोपरेशन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्रॉप प्रोडक्शन में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है लेकिन बट दिस ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट्स इनटू ड्राई मैटर, लेकिन एवोपरेशन को अगर हम देखें तो एवोपरेशन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में। इसका मतलब हमारे एफर्ट्स होने चाहिए दैट शुड बी टू रिड्यूस एवोपरेशन। तो अब हम इस एवोपरेशन को कैसे रिड्यूस करें, तो अर्ली स्टेज में एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि कैनोपी कवर नहीं है, फॉलिएज नहीं है। जैसे ही प्लांट्स का कैनोपी कवर फॉलिएज डेवलप होगा, शेडिंग इफेक्ट आएगा और एवोपरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ हम जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो है मल्चिंग। तो वी शुड यूज मल्च ऑन फील्ड। तो सपोज कर लीजिए कि ये फील्ड है एंड moisture is present in field and it is lost through evaporation like that, and we are applying mulch on soil surface, and this mulch act as a physical barrier to the evaporating water, so moisture is conserved into the soil. So mulching is very important practice to reduce evaporation. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड वन इज दैट मल्च जो देखिए जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन नहीं आ पाता है, तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा सॉइल की हीटिंग नहीं हो पाती है, सो इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सॉइल टेम्परेचर। फिर क्या है, जो वीड्स जर्मिनेट करते हैं, तो वीड्स जब जर्मिनेट करेंगे यहाँ से तो दे फेस ए बैरियर, फिजिकल बैरियर, क्रॉप रेजिड्यू, एंड दे डू नॉट इमर्ज। तो वीड प्रॉब्लम में क्या होती है, कम होती है। देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ मल्चिंग, बट हियर आवर ऑब्जेक्टिव is to reduce the evaporation. तो मल्च हमको यूज करना चाहिए, एंड फॉर मल्चिंग वी कैन यूज
क्रॉप रेजिड्यू, स्ट्रा, स्टोवर, कोई भी हम ऑर्गेनिक रेजिड्यू को फील्ड में यूज करना चाहिए। एंड दिस मल्च शुड बी स्प्रेड बिटवीन क्रॉप रोज। तो कहाँ हम मल्च लगाएं? मान लीजिए 2 क्रॉप रो हैं, क्रॉप इज सोन in this way, this is crop row, this is crop row, so mulch should be spread between the this crop row। यहां हमको मल्च का यूज करना चाहिए इंटर स्पेस, so this inter space is used for mulching, so this is very important aspect and organic mulching are very effective, and this organic mulching after decomposition add organic matter into soil। ये हमारा दूसरा एडवांटेज है। कई एडवांटेज है मल्च के, ऑर्गेनिक मल्च के, उसमें एक एडवांटेज ये है ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मल्च रिड्यूस करती है ऑपरेशन को थ्रू फिजिकल बैरियर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, टू रिड्यूस द एवोपरेशन इज वीड कंट्रोल। वाटर लॉस एक्चुअली में एवोपरेशन को तो नहीं करेगी, जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको करेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वीड कंट्रोल है और यहाँ भी वीड कंट्रोल, बिकॉज वीड्स water is lost through transpiration, so here transpiration loss is reduced, so here evaporation, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसपिरेशन थ्रू वीट को चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। वीड कंट्रोल, टाइमली वीड कंट्रोल, क्योंकि वीड्स उगेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपिरेशन करेंगे, तो उससे वीड का बायोमास बढ़ेगा, वीड डायमीटर बढ़ेगा और हमको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो एवापोरेशन को अगर हमको चेक करना है तो हमारा कौन सा है? मल्चिंग है। और मल्चिंग मैंने आपको बताई ऑर्गेनिक मल्चिंग। एक मल्चिंग और है, मल्चिंग तो कई तरह की है। सेकंड वन इज डस्ट मल्च। इन केस ऑफ डस्ट मल्च शैलो कल्टीवेशन इज डन। शैलो कल्टीवेशन करते हैं जिससे जो कैपिलरी राइज ऑफ वाटर है वो खत्म हो जाता है। इसको ऐसे समझिए डायग्राम से कि this is field and moisture is present in the field and there is a capillary rise and through capillary rise moisture is evaporated, okay, so this is the process। so in evaporation moisture is lost through capillary rise, तो soil के अंदर capillary rise होता है, उससे moisture loss होता है। अगर हम इस capillary rise को break कर दें then there will be no further evaporation। moisture यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जब कैपिलरी राइज नहीं मिले, कैपिलरी नहीं मिलेगी उसको, तो एवोपरेशन नहीं होगा। तो हाउ वी कैन ब्रेक कैपिलरी? शैलो कल्टीवेशन, हैंड हो चला सकते हैं या थ्रू स्पैड, या बहुत हल्के से हम सॉइल को डिस्टर्ब कर दें, एंड इट इज़ नोन एज डस्ट मल्चिंग। मतलब ऊपर उसके इतना कल्टीवेशन करना कि दैट क्रिएट डस्ट, ओनली डस्ट, डीप कल्टीवेशन नहीं करना है, नहीं तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी और एडवांटेज में कुछ नहीं होगा। बहुत शैलो कल्टीवेशन करना है, दैट इज डस्ट मल्चिंग। So in this way we can reduce transpiration. So this is mulching is very effective way to reduce evaporation. As far as transpiration is concerned, तो मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन को हम रिड्यूस करेंगे, डेफिनेटली देयर इज यील्ड रिडक्शन। तो जो भी प्रैक्टिस ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेंगी उससे यील्ड का रिडक्शन होगा। तो हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? एवापोरेशन को कम करने की होनी चाहिए। लेकिन ट्रांसपिरेशन का जो लॉस है थ्रू वीड कंट्रोल, वी कैन रिड्यूस द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो वीड्स खत्म हो जाएंगे तो जो वीड्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमको क्रॉप सर्वाइवल चाहिए, मान लीजिए रेनफेड एरिया है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है और मॉइस्चर की कमी हो रही है, तो ऐसे केस में हमको ट्रांसपिरेशन करना चाहिए, ट्रांसपिरेशन को चेक करना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में ट्रांसपिरेशन चेक करने के एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। नॉर्मल कोर्स जो है, अगर क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो रही है तो हम कोई ऐसी प्रैक्टिस ना करें जिससे कि ट्रांसपिरेशन चेक हो। फिर हमको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए जो मैंने अब तक बताई है। लेकिन मान लीजिए कि अब रेनफॉल नहीं हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सॉइल मॉइस्चर इज कंटिन्यूसली डिप्लीटिंग, और अब हमको लगता है कि रेनफॉल भी नहीं होगी और जो सॉइल मॉइस्चर सारा लॉस हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो ऐसे केस में हमको जो करना चाहिए प्रैक्टिस है वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वो हमको करना चाहिए एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। इसका एक पूरा लेक्चर मैं बता चुका हूं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जिनको हम अप्लाई करते हैं क्रॉप पे एंड दे
रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। लेकिन देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ इस बात को कि एंटी ट्रांसपेरेंट से यील्ड रिडक्शन होगा, क्योंकि भाई ट्रांसपिरेशन को हम चेक करेंगे तो जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो खत्म हो जाएगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो रुक जाएंगे, तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, व्हेन वी अप्लाई atrazine of phenyl mercury acetate PMA, then they close stomata. Once stomata are closed, there is no transpiration. But at the other hand, entry of CO2 is reduced. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, प्लांट के अंदर का पानी तो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन बाहर से CO2 भी अंदर नहीं आ रही, तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस चेक हो जाएगा। बट ये हमारा ऑप्शन तब है जब हमको लगता है कि सॉइल मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो अब हम क्रॉप को बचाने के लिए तब एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर को जो ड्राई मैटर बन चुका है कम से कम वो तो सेव हो जाए, फर्दर न्यू ना बने, लेकिन जो बन चुका है वो सेव हो जाए, उससे हमको कुछ ग्रेन यील्ड मिल जाए, भले कुछ नया ड्राई मैटर प्रोडक्शन ना हो। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइम। सेकंड वन इज फिल्म फॉर्मिंग टाइम। व्हेन वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, देन दे फॉर्म ए फिल्म ओवर सॉइल सरफेस, लीफ सरफेस। तो जो फिल्म बन जाएगी, तो जो लाइट है वो उसमें लीफ में नहीं जाएगी, रिफ्लेक्टिंग टाइप है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो लीफ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो जब लीफ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो एक है हमारा, ये मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा क्लोज कर देता है, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप है, एक है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप, जो ग्रोथ को ही रिटार्ड कर देते हैं। उसमें जब ग्रोथ कम हो जाएगी, लीफ साइज कम हो जाएगा, नंबर ऑफ लीव्स कम हो जाएंगे, तो टोटल ट्रांसपेरिंग एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिल्म फॉर्मिंग टाइप मैंने आपको बताया, फिल्म बनाएगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में स्टोमेटा क्लोज करेगा। ग्रोथ रिटार्डेंट में ग्रोथ को कम कर देगा। तो एक पूरा एक सेपरेट लेक्चर मैंने बना रखा है एंटी ट्रांसपेरेंट पे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सबकी जो काम करने का तरीका अलग अलग होता है, बट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटी ट्रांसपेरेंट इज टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन एंड डेफिनेटली देयर इज यील्ड लॉस। तो ये मैंने आपको बताया एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन हम कर सकते हैं थिनिंग ऑफ प्लांट्स। तो हमको ऐसा लगे कि कुछ प्लांट्स वीक हैं या डिसीज हैं या इसमें इंसेक्ट है, तो उसको हम निकाल दें, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दिस प्लांट, बट ओवरऑल देयर इज नो यील्ड कंट्रीब्यूशन बिकॉज दे आर इन्फेक्टेड। तो ऐसे प्लांट्स को हम कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब हम थिनिंग करते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जब प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया विल बी लेस एंड ट्रांसपिरेशन विल बी लेस। तो ये तभी हम करते हैं प्रैक्टिस जब हमको लगता है कि अब क्रॉप डेथ होने वाली है। देन लीफ रिमूवल, ये हम कर सकते हैं। ओल्डर लीव्स आर रिमूव्ड बिकॉज इन ओल्डर लीव्स देयर इज नो फोटोसिंथेसिस बट दे कंट्रीब्यूट इन फोटोसिंथेसिस। सो सच टाइप ऑफ लीव्स आर पैरासिटिक लीव्स। तो पैरासिटिक नेचर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ड्राई मैटर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा ओल्डर लीव्स में, तो उसमें ग्रेन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो हम लीफ रिमूवल कर सकते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, film forming type and growth retardant type. We can use 4 types of anti-transparents. Then we can go for thinning of plants so that total number of plants remain low and total transpiration is less. Then removal of lower leaves which do not contribute in photosynthesis. तो ये मैंने आपको वेज बताए यील्ड को, हाउ वी कैन इंक्रीज द यील्ड। ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप जानते होंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिड्यूस ईटी। तो आवर मैक्सिमम एफर्ट शुड बी ऑन टू रिड्यूस इवोपरेशन। और इवोपरेशन को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मल्च एप्लीकेशन, मल्चिंग। एंड देन हाउ टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन लॉस थ्रू वीड कंट्रोल हम कर सकते हैं, और बाकी ये ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट, थिनिंग एंड लीफ रिमूवल। लेकिन हमको एंटी ट्रांसपेरेंट तभी यूज करने चाहिए जब लगे कि अब क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाएगी या देयर इज नो चांस फॉर इरिगेशन और रेनफॉल। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन इंक्रीज water use efficiency so that we can maximize the water use। तो ये जो प्रैक्टिस है थिनिंग लीफ रिमूवल की, एक्चुअली में ये क्रॉप सर्वाइवल के लिए है, ताकि सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हाउ वी कैन रिड्यूस इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड हाउ वी कैन इंक्रीज यील्ड। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और भी लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में, उसको देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।